So iso means same. That we know. Let me take the new slide. So what is meant by isotropic? Isotropic, iso means same. So the properties of any material are direction independent. They are not directional. Means if you start finding out the property in particular direction, normally we take the x, y, z, which is very common. So like this. Then the properties, mostly the optical properties. We normally talk about optical and electrical properties, and we'll talk about the this property again in dielectric. So the optical properties are direction independent. Now you may get surprised that how is it possible that some properties will depend on the direction, but that happens. For example, if the light is traveling say in x direction, and if it has the velocity say v1, and when it starts moving in y direction, of course, I mean with different source or the same source rotated in 90 degree, okay, then it will travel with some different speed, say v2, and suppose in z direction it may travel with the velocity v3, and for isotropic medium this v1 is equal to v2 equal to v3, but for anisotropic medium v1 may not be equal to v2, even though v2 may be equal to v3, or v1 may be equal to v3 but not equal to v2 is not equal to v3, something like that. Okay, so one of the velocity is different or two of the velocities are different when in all direction they are different. Okay, so depending upon that we have anisotropic medium, that is also called anisotropic. Now, what is meant by anisotropic? It is not isotropic. That means the properties are not same in all directions. So, in particular direction, suppose the velocity is say v1, and in another direction v2, then it is not same. But there is a specific direction where all the properties are same in very specific direction. Okay, that is called as optic axis. So if you take the optic axis of any anisotropic medium, then the all properties like velocity of light or instead velocity, we can talk about the refractive index, because it will be exactly opposite to this, inverse to this. Okay, velocity is inversely proportional to the refractive index, and therefore along the optic axis we can say n1 equal to n2 or equal to n3 and so and so. Or we can talk about say extraordinary ray and ordinary ray have the same velocity or same refractive index. So that particular direction is called as optic axis. Otherwise, the NE is different. It is different than NO. What is NE and what is NO? What is NE and what is NO? Refractive indices of extraordinary and ordinary ray. Yes, it is the refractive index of extraordinary and ordinary ray. So even if the crystal is same, the refractive index are different. How is it possible? How is it possible? Do you see something like this? Even though the material is same, it appears differently for different people. Hmm? It depends on how you experience it. For example, when you take a bath,
you may say that this water is cold, right? But somebody else may say, ah, this is not cold. I usually take bath with cold water. Are you getting my point? So even though the water is same, the perception of the people are different. अगर आपको कहा जाए कि स्विमिंग करना है 50 meters, okay, you can take as much time as you want. So those swimmers will be very happy. है कोई स्विमिंग वाले, है कोई? नहीं, कोई नहीं. Yes, sir. Okay, good. That is a basic skill actually. And non-swimmers will say, oh, 50 meters is it is very long distance. Even if you walk through the water, because water is normally say 1.5 meter, गले तक आ जाता है आपके, तो गले तक पानी है, उसमें आपको वॉक करना है. Now your speed will be different. The swimmer speed will be different. Water is same. Situation is same. Are you getting this? Yes. Even for the swimmer also, if he goes for say freestyle swimming, then the speed will be different. For butterfly stroke होता है, ठीक है? So that will be different, right? So that depends on various direction. Like for example, if you want to swim in with river, okay, and the river is say in this direction, okay, going in this direction. Now, if you are swimming in this direction, then it is quite easy for you. If you are swimming in this direction, it is very, very difficult. If you are swimming across the river, it will be quite different. So, depending upon the direction, the swimmer's performance will vary. Clear? इतना समझ में आया? Yes. Now let us consider there is a point source of light. आप बीच में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं. अगर ऐसा आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस होगा वगैरह, कुछ नहीं, ठीक है. Now let us consider point source of light. Point source means there is a point from which we are getting the waves out of it, like this. Now suppose this is an isotropic medium. Isotropic means the waves will travel in all direction with same speed. So if you take some time, say t, so at time t, if this wave reaches to this point, and this reaches to this point, and then this point, and this point, and this point, and then you take the locus of all these points, then what will be this locus? ये कौन सा shape हो जाएगा? Circular. Okay, anybody else? Sphere होगा. Sphere होगा, because we have to talk about, we are talking about point source, and the light will travel in all possible directions. All direction. Yeah, so therefore it will be spherical, but we cannot draw the sphere, so you have to draw the circle. Okay, so this is sphere. But if there is a point source and the medium is such that in this direction the refractive index is less, and in this direction the refractive index is high. Okay, let's low कर देंगे इसको, low लिख देते, ठीक है. So if the refractive index is low, then the velocity will be more. Okay, so this will travel longer distance. Are you getting this? We know the velocity equal to distance over time, and therefore distance equal to velocity into time. Now time is fixed, so distance will be more if the velocity is more, and we know that the refractive index n is equal to the c by v, where c is the velocity of light in air. So if the velocity is more, the refractive index is less, or if the refractive index is more, the velocity will be less.
refractive index is less, velocity will be more. So this will travel more distance, whereas this will travel lesser distance. In this direction also it will travel more distance. This will travel less distance, and in between, accordingly, it will travel the, as you go from say high refractive index to low refractive index, the distance traveled will be more. अब बताओ कि इसका locus क्या आएगा? What will be the locus of all these points? Oval. Yes, but oval is not a standard shape. Standard shape क्या है? Ellipse. Oval में ellipse is 2-dimensional. उसको क्या कहते हैं जो 3-dimensional में ellipse होता है? कोन? नहीं, कोन तो ऐसे हो जाएगा. दिस इज कोन. अंडे जैसा रहेगा. इट इज ओवल, बट ओवल इज नॉट अ स्टैंडर्ड शेप. आपने देखा होगा कि अंडा एक साइड से थोड़ा शार्प होता है, एक साइड से थोड़ा बल्की होता है. तो अंडे जैसा शेप है, इलिप्स है, लेकिन 3 डायमेंशन में. उसको क्या बोलते हैं? Ellipsoid? Yes, it is ellipsoid. Very correct. So, just by looking at the ellipsoid, you can say this is anisotropic medium. Okay, I think we have this here. Yeah. So this is the ellipsoid. Clear? This is also ellipsoid. So this is for extraordinary ray, because extraordinary ray will always travel with different speed in different direction. But if you take the transverse section of this, अब अंडे को आपने बीच में से काट दिया, हॉरिजॉन्टल रखा अंडा और उसको बीच में से काट दिया, तो आपको कौन सा शेप मिलता है? उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे मिलता है? यू टेक बॉयल लेके फॉर एग्जाम्पल. अंडे को आपने हॉरिजॉन्टल रखा और फिर उसको कट किया, तो आपको ट्रांसफर सेक्शन क्या मिलता है? प्यारा बोला कैसे आएगा? हेमिस्फीयर? नहीं, टीएस जिसे बोलते हैं ना, तो ट्रांसफर सेक्शन इज ऑलवेज द 2 डायमेंशनल. इट इज नॉट 3 डायमेंशनल. ओवल मिलेंगे. नहीं, मैंने कहा कि इसको आप हॉरिजॉन्टल रख के इसको ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे, ट्रांसवर्स. ओके, नॉट द सर्कुलर मिलेंगे. यस, इट विल बी सर्कुलर, राइट. अगर उसको वर्टिकल आप रखते हैं या वर्टिकल कट करते हैं, देन इट विल बी इलिप्सॉइड, सॉरी इलिप्स. ellipse in 2 dimension, it will be ellipse, but otherwise it will be circular. ठीक है. वैसे नॉर्मली हम उसको वैसे सर्कुलर शेप में कट नहीं करते. नॉर्मली कट इन उसको क्या बोलते हैं? एक कट करके खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बॉइल्ड एग ही बोलेंगे, दूसरा तो कुछ नहीं बोल सकते. ये देखो, एक मिल गई मुझे इमेज, तो लेट मी शो यू. This one, this is downloaded from Dreams Time. So this is almost, because this is egg shape, oval shape, so therefore this may not be a very good circle, but it is circular, right? Similarly,
You can see here. Okay. Now this is circular. So for ordinary light, ordinary ray, what happens? This light will travel in all possible directions and it will give only the circular shape in the plane. प्लेन में वो सर्कुलर देगा. अगर 3 डायमेंशन लिया जाए तो 3 डायमेंशन में कैसे हो जाएगा इसका? This will be again here also it will be circular in this plane and therefore it will be totally spherical. So this sphere ये distance same है n0, sorry related to n0. Okay. So what are the distance maybe, right? Or you if you take about the refractive index, then it is n0. Any is more than n0, sorry less than n0. ठीक है, तो लेस होगा तो ये ऐसे कैसे आ गया भाई? अब देखो ये नीचे लिखा है ना, any is sorry any is greater than n0. Okay, so any is more, so therefore this ellipsoid is out of the sphere, or you can say the sphere is inside the ellipse. Clear? The sphere is inside the ellipse. So in that case, the refractive index of extraordinary ray is more than ordinary ray. और हम ये डिफाइन करते हैं NE is sorry NE minus N0, ये वैल्यू हम डिफाइन करते हैं. So if this is positive, then it is called as positive crystal. If it is negative, then it is called as negative crystal. यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव और नेगेटिव क्रिस्टल हो गया. ठीक है. So importance is of extraordinary ray because ordinary ray is going to give you only the sphere. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, no? रिपीट करना है? Yes, sir. Repeat, please. ओके ओके. Yes, sir. इसमें दो चीजें है, एक तो है ऑर्डिनरी रे और दूसरा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे. अब ऑर्डिनरी रे ट्रैवल करता है सभी डायरेक्शन में, ये सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, सभी डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जाएगा. तो अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर हम इसको ही लिख सकते हैं ना स्पीड में, तो दिस विल बी v0 विल बी ग्रेटर देन ve. ठीक है, तो इन दोनों का स्पीड, ये v0 का जो स्पीड है वो सभी डायरेक्शन में एक जैसा होता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का जो वेलोसिटी होगा वो अलग अलग होगा. ठीक है, तो कुछ जगह वो कम स्पीड से चलेगी, कुछ जगह ज्यादा स्पीड से चलेगी. ठीक है. Now if you talk about only the ordinary ray, then ordinary ray will travel in all possible direction with the same speed or its refractive index will be same. इसलिए हमने ये स्फीयर निकाला. ठीक है, जबकि अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की बात करते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल ट्रैवल इन सर्टेन डायरेक्शन विथ डिफरेंट स्पीड. कुछ जगह पे ज्यादा स्पीड होगा, कुछ जगह पे कम होगा. तो जहां स्पीड कम है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जहां स्पीड ज्यादा है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. नाउ लेट अस कम टू सर. हाँ सर फिर इक्लिप्स शेप कैसे होगा सर फिर? इलिप्सॉइड हो जाएगा ना. हाँ, तो इलिप्सॉइड ही कैसे होगा सर फिर? अलग अलग जाओ, कहीं पे भी जा सकते हैं सर, कम ज्यादा कहीं पे भी हो सकता है, इरेगुलर शेप होगा ना फिर? नहीं इरेगुलर नहीं रहता है. नॉर्मली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंटिन्यूअस इन एनी मटेरियल, इट इज नॉट एब्रप्ट. कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि सपोज फॉर एग्जांपल द वैल्यू इज से 1.5 एंड हियर द वैल्यू इज से 1.6. सो इसके बीच में जो वैल्यू होगी ना तो वो 1.55 होगी, इसके बीच में जो आएगी 1.53 होगी. It will never happen that along this axis it is 1.5 and along this axis it is 1.6 और ये बीच में 1.7 भी आ गया. Never, never. ओके. तो इसलिए वो क्या कहते हैं उसे, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज नॉट एब्रप्ट, इट इज नॉट स्टेप फंक्शन. सडन चेंज नहीं हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लोली वेरी हो रहा है. और ये भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर वो तो दो इमेजेस बिल्कुल अलग अलग दिखेंगी.
दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, बहुत कम होता है उसका डिफरेंस. नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन दिस साइड, दिस will travel less and this will travel more. Okay, extraordinary ray है, this is for E ray, this is for O ray. Okay, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे एक पर्टिकुलर एक्सिस, अगर मान लो कि यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.6 आ रहा है और ये 1.6 आ रहा है इस डायरेक्शन में, सिर्फ इस डायरेक्शन में, तो ये फिर मैच हो जाएंगे, ये स्फेरिकल का ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन, तो ये आप ऐसे निकाल सकते, राइट. ये आ गया आपका. ऑर्डिनरी रे के लिए 1.6 ही है हर जगह, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए इस डायरेक्शन में 1.6 है, इस डायरेक्शन में 1.5 है, तो इट विल ट्रैवल मोर. ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ. अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं तो देन इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये इसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, अब मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ. इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये रिलेशन अपोजिट है, तो कोई भी एक रिलेशन आप याद रखो, एन इज माइनस एन जीरो, ये आप याद रखो. एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज नॉर्मली ग्रेटर देन ऑर्डिनरी, तो अगर वो ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, लेस है तो नेगेटिव है. दैट्स इट. या any minus n0 is positive, then it is positive crystal, and otherwise it is negative crystal. अब यहाँ देखो कि यहाँ इस डायरेक्शन में ये n0 आ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी n0 है, इस डायरेक्शन में भी n0 है, इस डायरेक्शन में भी n0 है. ठीक है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन जो है, वर्टिकली अपवर्ड, इस डायरेक्शन में ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? एनी के पहले आएगा या एनी के बाद आएगा? Let me give you two choices like this. So this is 1 and this is 2. अब बताओ. सर क्वेश्चन रिपीट करें. बिल्कुल. नेगेटिव क्रिस्टल ले रहे हैं हम. नेगेटिव क्रिस्टल में हमने क्या लिया, ये तो एनी का इलिप्सॉइड हो गया. एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का हमेशा इलिप्सॉइड ही रहेगा. ठीक है, ये याद रखना. ऑर्डिनरी रे का हमेशा स्फीयर ही रहेगा, हमेशा स्फीयर रहेगा. अब क्वेश्चन ये है कि इस स्फीयर की रेडियस जो है ये है यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, सपोज O टू A. ठीक है, इधर B, इधर C, इधर D, तो OA, OB, OC, OD, these are the same distances in all possible direction. ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में. वर्टिकल में ये कहाँ पे आएगा? वर्टिकल में अगर मुझे सेम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, OA जितना डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, तो वो एक नंबर 1 पोजीशन पे आएगा या नंबर 2 पोजीशन पे आएगा? नंबर 2. ओके, नंबर 2 एक आंसर आया, नंबर 2. और नंबर 2. नंबर 1 वाला है कोई? सर मतलब समझ नहीं सकते. ओए देखो, OA जो डिस्टेंस है ना, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उसको आपको वर्टिकल प्लेन में या अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है, इधर इधर इस डायरेक्शन में दिखाना है, इस डायरेक्शन में. तो ये OA डिस्टेंस जो है वो कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा? आपने EG में सीखा है ये. देखो, ये ऑर्डिनरी रेज है. ठीक है, तो ऑर्डिनरी रे का क्या बनता है? इलिप्सॉइड बनता है या स्फीयर बनता है? स्फीयर बनता है. स्फीयर. अब स्फीयर के लिए हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस सेम चाहिए, इधर जितना है उतना ही इधर चाहिए, उतना ही ऊपर चाहिए, उतना ही नीचे चाहिए. तो ये यहाँ तक आएगा ये, राइट. और इसका फिर स्फीयर बनेगा. फिर भी ये थोड़ा सा इलिप्सॉइड, थोड़ा सा इलिप्सॉइड होगा. दिस विल बी अ परफेक्ट स्फीयर.
ठीक है. Now this you can see very easily. This is for n0 and we know that n0 is greater than any. तो ये जो स्फीयर बना तो इसमें n0 is more than the any. ठीक है. आगे धन में यहाँ पे भी n0 is sorry n0 is less than any. तो आप यहाँ देखो this is n0, this is any. So here n0 is less than any. किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, इस डायरेक्शन में ले लो. ये रेड वाला जो है ये n0 है, ब्लैक वाला जो है ये any है n0 is less than any. But this is a particular direction where n0 is equal to any. इसको क्या कहते हैं? इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था. आइसोट्रोपिक. नहीं, आइसोट्रोपिक नहीं. कौन सा एक्सिस बोलते हैं इसको? This is called as optic axis. ठीक है. ऐसी एक डायरेक्शन, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी डायरेक्शन जिसमें refractive index of ordinary ray and refractive index of extraordinary ray are both same. इसमें भी ये देखो, ये जो डायरेक्शन है BA सपोज या AB, you take anyone. Even for CD, you can take CD also. Okay. So a crystal can have two different directions or one direction where the ordinary ray refractive index is same as that of extraordinary ray, and that is called as optic axis. Now suppose there is only one axis, where the refractive index is same, then it is called as uniaxial. Very simple. And if there are two axes where the the refractive index of the ordinary and extraordinary are same, that they are called as biaxial. Bi means two. ठीक है. Accordingly, if this is positive crystal, then it is called as uniaxial positive crystal or positive uniaxial crystal. For negative, it is called as negative uniaxial crystal. Clear? अगर आप ऐसे इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव यूनिएक्सियल एंड नेगेटिव यूनिएक्सियल. Now positive means we know, we define this positive and negative on the basis of NE minus N0. ठीक है. अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव. ठीक है. तो we can write NE minus N0 is greater than 0. Here we can write NE minus N0 is less than 0. Simple. Both are uniaxial. Okay. And then NE is, this means that NE is greater than N0. This means NE is less than N0. वही हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया. Now if the refractive index of extraordinary is more than refractive index of ordinary, what relation you expect in the velocity of these rays? क्या रिलेशन आएगा? पहले केस में पॉजिटिव में क्या आएगा? VE is पॉजिटिव में VE less than VO. जी, this will be less than, very correct. This is exactly inverse. Okay. और ये ग्रेटर देन है तो ये सॉरी लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा. ठीक है. हो गया आपके तीन डिफरेंसेस, 1 2 3. चौथा लिख लो इसका एग्जांपल. एक में कैल्साइट है, दूसरे में टोरलामाइन है. ठीक है. तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा है. ठीक है. अब यूनिएक्सियल है, दोनों यूनिएक्सियल है तो देयर इज ओनली वन एक्सिस. ओके. एंड देन यू कैन हैव द डिफरेंस बिटवीन द यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल आल्सो. अब इसका डायग्राम निकाल सकते हैं आप. अब पॉजिटिव यूनिएक्सियल, ठीक है.
अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख रहे हैं तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए पहले एक स्फीयर निकाल लो, ठीक है। अब इस एक्सिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस एक्सिस पे सेम है, हो गया आपका ये इंडिकेट्रिक्स। ये टच करना है, यहाँ पे टच करना है। तो दिस इज फॉर एन ई, दिस इज फॉर एन ओ, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट द सिमिलर थिंग इन से नेगेटिव यूनिएक्सल, नेगेटिव यूनिएक्सल में इसका लेस है, तो यू कैन जस्ट टेक दिस लेस। आप किसी भी इसमें ले सकते हैं, इस एक्सिस पे भी ले सकते हैं, इस एक्सिस पे भी ले सकते हैं। किसी एक एक्सिस पे आपको इसको टच करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस। या इसी को आप, इसी डायग्राम को ऐसे भी निकाल सकते हैं। इफ यू टेक से स्फीयर and if you take this axis as optic axis, this is optic axis now. Here this is the optic axis, horizontal. Now here it will be different. It will be kind of rugby ball. ठीक है। तो ellipse inside circle or the ellipsoid inside the sphere, that will be the case for negative, whereas sphere inside the ellipsoid, अगर आपको ये ऑप्टिक एक्सिस लेना है, ये वर्टिकल वाला जो सॉरी वर्टिकल वाला अगर आपको ऑप्टिक एक्सिस लेना है तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो नाउ दिस इज एनी एंड दिस इज एनी। जो सर्कुलर शेप दिख रहा है वो ऑर्डिनरी है। क्लियर? इस डायग्राम को कम से कम 10-12 बार ड्रॉ करके देखना और उसमें एनी N0 लिख के रखना, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी कि ये डायग्राम, दिस डायग्राम लुक्स सिमिलर टू दिस डायग्राम बट इट इज नॉट सिमिलर, ओके, इट इज नॉट सेम। दिस इज इलिप्सॉइड इनसाइड द स्फीयर, दिस इज स्फीयर इनसाइड द इलिप्सॉइड, ठीक है। Yes. Okay, any question, any doubt? Oh, I just forgot to tell this point. Okay, now when we talk about the goggles, then why we use the goggle? The most important application of goggle is, or the polarized glasses is, reduce the glare. Glare क्या होता है? ग्लेयर क्या होता है? कभी देखा है आपने ग्लेयर? क्या सर? Intensity. Strong light, dazzling light. हाँ, तो स्ट्रॉन्ग लाइट कैसे आएगा? मतलब देर इज डिफरेंस बिटवीन हाई इंटेंस लाइट एंड ग्लेयर। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? इंटेंसिटी हाई होती है और इंटेंसिटी लो। नहीं, इंटेंसिटी का, जिस इंटेंसिटी, अगर मान लो कि इंटेंसिटी ज्यादा भी है तो आपको वो मतलब इट इज ओके, यू कैन जस्ट वॉच इट। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी की इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी तो यू कैन वॉच इट, दैट इज नॉट अ ग्लेयर। ग्लेयर क्या होता है? harsh and शाइन, यस, शाइन और हार्श, बिल्कुल सही कहा। मान लो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है कांच वाली, ठीक है, बहुत सारे कांच लगे, वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना, दैट इज इरिटेटिंग। ये देखा आपने? यस सर, यस सर। कभी कभी आपने ट्रैवल करते वक्त देखा होगा कि आगे वाला ट्रक्स, स्पेशली ट्रक्स के बारे में ऐसा होता है, तो ट्रक से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, सनलाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इट इज इरिटेटिंग, बहुत ही इरिटेटिंग होता है। दूसरा,
फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे पानी है, ठीक है, मे बी सी शोर और मे बी रिवर, मे बी पॉन्ड, तो उससे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, दैट इज इरिटेटिंग। इरिटेशन क्यों होता है? बिकॉज दैट हैज दिस काइंड ऑफ पोलराइजेशन। हॉरिजॉन्टल जो है ना कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होता है उसमें, बाकी रिफ्लेक्शन होने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट या बाकी कंपोनेंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। So what we do is we take these polarides in such a way that the axis of the polaroid is vertical, like this. Now what will it do? It will pass all the vertical vibrations, clear, but it will not pass this horizontal, क्योंकि ये क्रॉस हो गया। तो जैसे ये क्रॉस हो जाता है, ये इसका जो ग्लेयर वाला जो पार्ट है, which is normally the horizontal vibration, so that reduces, रिड्यूस हो जाता है। ये देखो आप यहाँ पे, ये गॉगल के बाहर से देखो कैसे दिख रहा है, और ये अंदर से देखो कैसे दिख रहा है। सो इट अपीयर्स वेरी कूल, ठीक है। तो गॉगल सिर्फ आप कूल दिखने के लिए नहीं यूज किया जाता, आपको बाहर का जो भी है वो कूल दिखना चाहिए। स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू आर इन से स्नोफॉल रीजन, जहाँ पे स्नो पड़ता है, ऐसे रीजन में, तो वहां से ये ग्लेयर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। सो नॉर्मली यू मस्ट हैव सीन, जो लोग स्कीइंग करते हैं तो वो हमेशा गॉगल पहन के स्कीइंग करते हैं, दैट इज अ ब्लैक गॉगल और काइंड ऑफ कलरफुल गॉगल, नॉट द प्लेन व्हाइट, ठीक है। पोलराइड होता है वो अपने यहाँ जो मिलता है ना 100 रुपए वाला, वो नहीं होता। तो वो तो सिर्फ इंटेंसिटी रिड्यूस करेगा, वो ऐसे होता है। ये जो है ना, ये डायरेक्ट लाइट आ रहा है ना इधर से, तो दैट विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ओनली, ओके। ग्लेयर वो रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट इज पासिंग, बट इफ यू टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टेड लाइट, देन इट रिड्यूसेस द ग्लेयर ग्रेटली। तो आपको फिर वो जो भी सीन दिखता है वो बहुत अच्छा दिखता है। सेम थिंग हैपन विद कैमरा। आपका जो भी कैमरा है उसको भी ऐसे ही एक फिल्टर लगाया जाता है, पोलराइड फिल्टर लगाया क्या है किसी के पास डीएसएलआर? नहीं है। डीएसएलआर में नॉर्मली लगाया जाता है सो दैट इट रिड्यूसेस द ग्लेयर। इवन इन योर मोबाइल फोन्स इट रिड्यूसेस द ग्लेयर। तो आप ये नाइट में अगर फोटो निकालते हैं, ठीक है, मान लो कि कोई रॉकेट है जो ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाता है और बहुत कलरफुल लाइट देता है, उसका अगर आपको फोटो खींचना है, तो अगर आपने फोटो खींचा तो देन इट विल बी समथिंग लाइक व्हाइट व्हाइट दिखेगा पूरा। या ये अनार जो होते हैं ना अपने दिवाली के, उसका फोटो खींच के देखो आप, और डीएसएलआर से खींच के देखो, बिकॉज द ग्लेयर इज लार्जली रिड्यूस यूजिंग द पोलराइड फिल्टर्स, ठीक है। ओके, आई थिंक दैट इज इनफ फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, गो अहेड। सर वो ग्लास से देखते हैं तो ऐसा कूल 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 लगता है, मतलब आंखों को ठंडा लगता है, तो ऐसा क्यों? ये वो ग्लेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका रिड्यूस हो रहा है, ये एकदम कम हो गया। ये देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज दिस हैज बीन रिजेक्टेड बाय दिस वर्टिकली पोलराइज ग्लासेस, पोलराइड ग्लासेस। तो हमने वो ये पढ़ा है ना कि जब आप वर्टिकल पोलराइजेशन है और हॉरिजॉन्टल आपका पोलराइड है, तो वो पास नहीं होगा। दोनों एक्सिस जब तक प्लेन, सॉरी, जब तक पैरेलल नहीं होते तब तक वो पास ही नहीं होता। क्लियर? सर
यस सर। हाँ हाँ सर अगर गाड़ी जो कार होती है सर, उसके जो कांच होता है सामने का, उसको भी पोलराइड ग्लास लगाते हैं, लेकिन अगर उस गाड़ी का ड्राइवर अगर स्पेक्टेकल्स मतलब उसके पास उसका चश्मे वाला होगा सर, उसके भी ग्लास का जो फोकस और जो लेंस जो मेजर किया जाता है वो अलग रहेगा। और सर फिर गाड़ी का जो कांच रहेगा अगर वो पोलराइड रहेगा तो उसका भी एक फोकस कुछ अलग रहेगा सर। फिर वो आगे वाला मतलब वो देखेगा कैसे कि आगे वाली गाड़ी इतनी पास आ गई तो इतनी दूर आ गई, उसके नहीं नहीं देखने में कोई डिफरेंस? नहीं, फोकस इज डिफरेंट, पोलराइजेशन इज डिफरेंट. Okay. For example, when I drive with the spectacles on. तो मुझे वो नॉर्मल दिखता है, जो जो आपको नॉर्मल दिखता है ना, वैसे मुझे गॉगल सॉरी चश्मा लगाने के बाद दिखता है. ठीक है, क्लियर. बट द ग्लेयर विल बी सेम फॉर यू एंड मी बोथ. दोनों के लिए ग्लेयर सेम रहेगा. मैं चश्मा पहन के रहूं तब भी ग्लेयर होगा, नहीं रहूं तब भी ग्लेयर रहेगा. तो ग्लेयर हटाने के लिए सिर्फ पोलराइड ग्लासेस लगाइए. मतलब उसका फोकस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. फोकस इज डिफरेंट. अगर अगर मान लो कि वो जो गाड़ी का कांच है उसको भी फोकस रहे तो फिर वो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नंबर -6 है और मैंने गाड़ी का कांच ही ऐसा बना दिया कि मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर दूसरा जो भी होगा वो चला नहीं पाएगा. यस आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस दैट विल सर। बी रियली फनी. तो नॉर्मली क्या होता है कि पोलराइड ग्लासेस जो होते हैं उसका एक्सिस हमेशा वर्टिकल रखा जाता है. एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन वर्टिकल होता है, सो दैट इट विल रिड्यूस द ग्लेयर. बाकी इंटेंसिटी थोड़ी सी रिड्यूस होती है पोलराइजेशन से, बट उतनी नहीं होगी. बट इफ इट इज गॉगल, then it does both work, like it reduces the intensity and it reduces the glare both. तो आप देखो, सर अगर आप हाँ सर लेकिन वो पोलराइड ग्लास के अंदर सर ऐसा क्या होता है जो बाकी के आने वाले अदर डायरेक्शन में मूविंग होने वाले मतलब पार्टिकल को बस एक ही डायरेक्शन में लेके आते हैं? that is the axis of polarization. तो वो it is a polarizer. जैसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मान लो कि एक बहुत छोटा सा ऐसा रास्ता है जहाँ से आप वर्टिकल ही जा सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू बी इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन, तभी आप उस वहां से पास हो पाएंगे, नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे. वैसे ही ये होता है, जैसे ये लाइट्स है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको. जैसे ये लाइट है, तो ये इसका जो वाइब्रेशन है ये ऐसा है, हॉरिजॉन्टल. नाउ दिस हॉरिजॉन्टल कैन नॉट पास थ्रू दिस वर्टिकल पोलराइजर, तो ये रिजेक्ट कर देता है. तो यहाँ पे जो जाएगा लाइट, दैट विल बी मच सूदिंग, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना, दिस इज इरिटेटिंग. वर्टिकल इज नॉट इरिटेटिंग. हमारे आई को ये वर्टिकल कंपोनेंट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता. इट इज नॉट एट ऑल सूदिंग, इट इज इरिटेटिंग. तो इसलिए फिर उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. तो रिजेक्ट कैसे करेंगे? तो सेम सिमिलर पोलराइजर हम यूज करेंगे, बट उसका एक्सिस इससे 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो वो पास नहीं हो पाएगा. जैसे हमने पहले क्लास में एग्जांपल लिया था, एक मूर्ति लाई हमने और मूर्ति हॉरिजॉन्टल रखी 4 फीट की या 5 फीट की. ठीक है, और आपका जो घर का दरवाजा है वो वर्टिकल है, तो आएगी क्या मूर्ति? नो नहीं आ सकती. ठीक है, दैट इज द सेम केस हियर. So this horizontal polarizations or the horizontal vibrations, not polarization, horizontal vibrations are really irritating. So what we do, we reject them. Vertical ठीक है, vertical हमारे लिए त्रासदायक नहीं है, बहुत
प्रॉब्लम नहीं होता उसका। तो लेट द वर्टिकल कम। यस सर फिर पीसी और लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है सर, फिर वो क्यों हॉरिजॉन्टल बनाते हैं? तो वो भी थोड़े वर्टिकल या स्क्वायर होने चाहिए फिर, नहीं नहीं अगर नहीं, मतलब हमको वैसे भी देखने पर। horizontal polarization is different and horizontal size of the this PC is different. आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप एक काम करना, गॉगल लेके उसको घुमा के देखना, गॉगल वर्टिकल करो। जैसे गॉगल तो हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टली पहनते हैं, उसको वर्टिकल करो। तो जैसे वर्टिकल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो ग्लेयर है, वो ग्लेयर पूरा का पूरा आ रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, करके देखो, अगर किसी के पास है ना पोलराइड तो करके देखो और फिर मुझे बताओ। एंड यू कैन जस्ट हैव द वीडियो आल्सो। तो ग्लेयर से आप अगर हॉरिजॉन्टल आप रखते हैं ग्लासेस तो आपको कैसे दिख रहा है, और वर्टिकल करते हैं तो कैसे दिख रहा है। इवन आई विल ऑल्सो ट्राई। यस शुभंकर। Sir, which type of glasses are used by the people who does welding? नो दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। वेल्डिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो लाइट आता है ना, तो यू हैव टू रिड्यूस द इंटेंसिटी, दैट इज वन थिंग। एंड सेकंडली यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आई। तो उसमें जो भी रेडिएशंस बाहर निकलते होंगे उसको स्टॉप करने के लिए जो भी ग्लासेस लगते हैं वो लगाते हैं। एंड सर वो भी एक होता है कि जो मतलब ऐसे आयरन के पाइप्स वगैरह होते हैं तो उनको काटते वक्त भी वो एक टाइप का लगाते, प्रोटेक्टर टाइप गॉगल, तो हाँ वो क्या रहता है सर? नहीं, वो दैट इज ओनली फॉर वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे आयरन के, तो वो आंखों में नहीं चले जाए, इसके लिए होते हैं वो। दैट इज सेफ्टी गॉगल, जो बड़ा सा होता है ना, ऐसे पूरा कवर कर लेता है आई, आई यस का सर। पोर्शन पूरा, हाँ पूरा कवर कर लेता है। दैट इज सेफ्टी गॉगल। तो अगर मान लो कि उस पे आयरन का पार्टिकल आ भी जाए तो वो टूटेगा नहीं। ओके, थैंक यू सर। इवन यू कैन यूज द सेम गॉगल फॉर ड्राइविंग, मतलब नाइट ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो वो गॉगल आप यूज करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो आंखों में जा सकते हैं नाइट में स्पेशली, तो उससे आप बच सकते हैं। ओके सर। क्योंकि नॉर्मल वाला गॉगल अगर आप लगाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। या मिनल। सर वो 3D मूवीज देखने के लिए जो गॉगल्स यूज करते हैं वो कैसे बनाते हैं? उसमें नॉर्मली दो टाइप के 3D मूवीज होते हैं। उसमें एक जो है वो कलर डिपेंडेंट होता है, एक मेरे ख्याल से ब्लू और रेड ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, ब्लू नहीं होता वो, और रेड भी नहीं होता, मैजेंटा एंड समथिंग लाइक दैट, ब्लूइश कलर एंड रेडिश कलर। तो एक आंख से हम रेड देखते हैं तो दूसरे आंख से ब्लू देखते हैं, एंड देन वी आवर ब्रेन सिमुलेटेड, वो 3 डायमेंशनल पिक्चर सिमुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में यू जस्ट कीप दिस क्वेश्चन, क्या कह सकते हो उसको, रिजर्व करके रखो। विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्लास। मैं आपको बहुत अच्छा, मेरे घर पे होगा मेरे ख्याल से, तो इवन आई यूज इट इन साउथ कोरिया। और वो जो दो टाइप की मूवीज होती है ना, वो अलग अलग होती है 3D मूवीज जो होती है, तो उसमें अगर मान लो कि आपने अलग ही गॉगल यूज कर लिया तो देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, वो आप नहीं देख पाएंगे। एक कलरफुल होता है, दूसरा कलरफुल नहीं होता है। आई डू हैव दैट ऑन माय फेसबुक, बट आई डोंट remember the password of the Facebook. I haven't used Facebook from maybe 6 7 years. I'll search and
आई विल शो द गॉगल। देखा है आपने 3D मूवीज का गॉगल? आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। तो वो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द कलर सेंसेशन। सर जो वीआर में यूज होते हैं वो कौन से क्लासेस है? हाँ, वीआर भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। उसमें भी आपका जो विजन है उसको, दैट इज बेसिकली क्या कह सकते हैं कि चीटिंग कर रहे हैं हम आईज के साथ। वी आर जस्ट चीटिंग द आईज। आप इस पे सर्च करो 3D गॉगल्स तो आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो उसमें जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही वो उस टाइप से बनाया जाता है। हाँ, ये एक मिल गया। दिस इज रेड ब्लू सायन, मतलब आगे इमेज। ओके, let me share this. It is not much costly, just 300 200 something. Yeah, I hope you can see this. So these are the two colors, and we get the color sensation different way. So I don't remember exactly, but I read somewhere that left one has to be red and the right one has to be that bluish color. अगर अगर वो उल्टा कर दिया जाए फिर पता नहीं क्या होगा। वीआर का भी ऐसे होता है। वीआर आप उसको 3D में देख रहे हैं ना, that is a different science altogether, but it is interesting. Okay, any other question?